Now I'm talking about types of RNA. RNA was the first genetic material to be discovered. तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो RNA है. There are evidences to prove that essential life process such as metabolism means digestion, translation, splicing means cut, etc. have evolved around RNA. There are some important biochemical reaction in living system that are catalyzed by the RNA catalyst and not by protein enzyme. तो RNA catalyst की तरह से भी काम करता है. DNA have evolved from RNA with chemical modification that made it more stable because RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. So now I'm talking about types of RNAs. Number 1, messenger RNA, mRNA. It provides the template for transcription. Number 2, transfer RNA, tRNA. It brings amino acid and read the genetic code. And ribosomal RNA, that is rRNA, play structural and catalytic role during translation. All the three RNAs are needed to synthesize protein in a cell. Other type of RNA includes number 1, snRNA. These are small nuclear RNA. They combine with unmodified pre-mRNA and various other protein to form spliceosome, a large RNA protein molecule complex, hence they are involved in splicing and other RNA processing reactions. hnRNA is a heterogeneous nuclear RNA. It is a precursor of mRNA, that is immature single stranded of messenger RNA. The complexity of hnRNA is higher than that of messenger RNA as hnRNA is non-random and sequence dependent. It is processed by spliceosome. तो इस तरीके से जो DNA है वो RNA से इन्वॉल्व हुआ है केमिकल मॉडिफिकेशन से. तो DNA ज़्यादा स्टेबल है, RNA क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो ये अनस्टेबल होता है DNA के कंपैरिजन में. और 3 तरीके के RNA होते हैं मेनली. तो मैसेंजर RNA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है. DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है. और RNA से अगर हम DNA बनाएं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. इसके लिए एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और DNA से RNA फिर RNA से प्रोटीन बनना, ये पूरी प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा कहलाती है. और DNA से वैसे तो मेनली मैसेंजर RNA बनता है पर कोई भी RNA बन सकता है. और DNA से DNA के बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं. ट्रांसफ़र RNA अमीनो एसिड को लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है, जबकि राइबोसोमल RNA जो है वो स्ट्रक्चर भी बनाता है और कैटलिस्ट की तरह से भी काम करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे जब प्रोटीन बनानी होती है. तो कुल मिलाकर ये तीनों RNA जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस में सेल की हेल्प करते हैं. इसके अलावा एक snRNA होता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA होता है. ये अनमॉडिफाइड प्री मैसेंजर RNA के साथ कंबाइन करता है और दूसरी प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक स्प्लाइसोसोम बनाता है. एक लार्ज RNA प्रोटीन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है ये. और इस तरीके से ये इन्वॉल्व होता है स्प्लाइसिंग में, कटिंग में और RNA की प्रोसेसिंग में. जबकि hnRNA जो है वो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA होता है. ये mRNA का प्रिकर्सर है, यानी इससे आगे चल के mRNA बनता है. इमेच्योर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर RNA है ये. और कॉम्प्लेक्सिटी जो है hnRNA की काफ़ी हाई होती है मैसेंजर RNA के कंपैरिजन में, क्योंकि hnRNA जो है वो नॉन रैंडम होता है और सीक्वेंस डिपेंडेंट होता है और इसकी प्रोसेसिंग स्प्लाइसोसोम से होती है. Now I'm talking about replication of genetic material, that is DNA. Replication of genetic material, that is DNA, is an essential feature of cell division. According to this scheme, 2 strands of double helical wound separate and act as a template for the synthesis of new DNA strand. After the duplication of DNA molecule or replication, each DNA molecule would have one parent and one newly synthesized strand. This scheme of DNA replication is thus known as semi-conservative DNA replication. तो रेप्लिकेशन जो है जेनेटिक मटेरियल का DNA का की अगर हम बात करें तो सेल डिवीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. और इसमें दोनों जो डबल हेलिकल थ्रेड होते हैं DNA के, हेलिक्स में स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, वो अलग हो जाते हैं
और टेम्पलेट की तरह से काम करते हैं, तो नया डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए जो है वो अपने दोनों स्ट्रैंड को खोल लेता है और एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, दूसरा रॉ मटेरियल उठा के नया स्ट्रैंड उसके बगल में उसी सीक्वेंस को देख के लग जाता है। इसीलिए डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। ओल्ड वाला तो वही पुराना जो रहता है वैसा, और उसको देखते हुए नया रॉ मटेरियल से नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो 50% नया और 50% पुराना थ्रेड है, दोनों मिलकर डीएनए को बना रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो आरएनए है। देयर आर एविडेंसेस टू प्रूव दैट